Yes. So बेटे last time we were discussing about the banking of tracks and उसमें देखा था मैंने, ठीक है, this is the angle of banking theta. That a car is moving on a backed road. The normal direction is always, we know well that it is always perpendicular to the surface on which the object or car is lying, and the weight is always towards the downward direction, towards the center of earth. So R is a vector quantity, normal direction is a force, okay? So being a vector quantity, we can resolve it into two components. One of the component is along this, that is parallel to horizontal, and another along the another component is along what, that is this along vertical. So if this angle of banking is theta or angle of inclination is theta, then this angle will also be equal to theta. So therefore जिस side component के साथ theta बनता है, that is equal to r cos theta, and other is called what, r sin theta. Other is called what, r sin theta. So therefore today r sin theta is toward the center of the track. जिस भी ट्रैक के ऊपर जो है, ठीक है, ये गाड़ी जो है, ठीक है, घूम रही है, ठीक है, टर्न जो जिसके ऊपर घूम रही है उसके सेंटर की तरफ कौन सा है, r sin theta. So therefore हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होती है, वेरी नेसेसरी फोर्स. That force is called what? Yes, friends. Centripetal force. Therefore, this component r sin theta will provide the necessary centripetal force. Therefore, r sin theta, and the magnitude of centripetal force क्या होता है बेटा, जी बोलो, mass of the object m into v square upon r. This is equation number 1. और अगर दो फोर्सेस कौन सी है, एक तो फोर्स हो गई r sin theta that is toward the center, और दो फोर्सेस और कौन सी हैं, एक r cos theta और एक mg. ओके, so therefore r cos theta will balance the weight of the car, that is equal to mg. This equation number 2. Dividing equation number 1 by equation number 2, you will get r से r cancel हो गया बेटे, m से m cancel हो गया. We get sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta is equal to tangent of theta is equal to what? It is equal to v square upon rg, or you can say that theta is equal to tan inverse v square upon rg. Tan inverse v square upon rg. Yes, बेटा जी, मैं बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? यस बेटा. अब इसको बेटे थोड़ा और ज्यादा आगे करते हैं, ठीक है. इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, जिस वेलोसिटी के साथ है जो बॉडी होगी, ठीक है, ये इस बैंक रोड के ऊपर क्या करेगी, नेगोशिएट करेगी इसको, ठीक है. मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द कार और द बॉडी विल नेगोशिएट द बैंकिंग ऑफ दिस ट्रैक. ओके, सो देयरफॉर उसके लिए बेटे डायग्राम और बनेगा, इसी को मैं एलैबोरेट करता हूं. हाँ देखो बेटा, दिस इज द बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स. इसको मैं जो, ठीक है, बॉटम जो है इसको मैं डॉटेड बना रहा हूं क्योंकि इसको बाद में मैंने इरेज कर देना. ओके, एंड लेट हियर इज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है बेटे, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लगी. वन फोर्स इज पैरेलल टू दिस, दैट इज व्हाट, सॉरी, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, दैट इज व्हाट, r cos theta. और एक जो फोर्स लगी बेटे, ठीक है, वो इसके पैरेलल लगी इधर को, ठीक है, इधर को फोर्स लगी. कहां को लगी बोलो, सास सेंटर वाली साइड को, जहां पे इसका सेंटर होगा, ठीक है, उधर को एक फोर्स लगेगी. वो फोर्स कौन सी होगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वो फोर्स होगी बेटे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ friction of between the tires and the road. So therefore, being vector quantity, this r, it and weight of the body is in downward direction. Weight of the car is in downward direction. So being vector quantity, this r can also be now resolved into two components. One component is along the what? Bolo shabas beta. This is component what, along this. If this angle is equal to theta, then this angle will also be equal to, this component is equal to r cos theta, and the component of normal reaction along the horizontal will be equal to what, that is equal to r sin theta.
Now friction is also a force. Friction is also a force, therefore it can also be resolved into what? बोलो बेटा जी शास. Friction is also friction यहाँ पे नहीं है. Friction is along the road. Here is, इसको बेटे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, बॉटम को. सो एंगल को भी इरेज कर रहा हूँ थीटा को. Here is the frictional force. रोड के पैरेलल होगी, ठीक है. Here is the frictional force. So frictional force being a vector quantity, it can also be resolved into two components. One of the component will be along vertical and one of the component will be along horizontal. If this angle is equal to theta, then this angle will also be equal to theta. So the component of the frictional force along what? Along the horizontal is what? Beta ji bolo shabash. R cos theta. And the component of force of friction along the vertical is what? That is equal to F cos theta and F sin theta. I am writing here F is equal to, we know force of friction is equal to mu r. We know force of friction is equal to what? Mu r. So therefore I am writing here F cos theta is equal to mu r cos theta. And F sin theta is equal to mu r sin theta. Okay, beta ji? Yes, friends? Yes, sir. So therefore, beta, now from the figure, अब देखो ये जो R और F है, इनको आपने भूल जाना ना, क्योंकि R के भी हमने दोनों कंपोनेंट निकाल लिए, इसको तोड़ दिया, और F को भी हमने तोड़ दिया. तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको इरेज भी कर सकता हूं. ओके, ये लो, इसको मैं डॉटेड सा कर दिया. ओके, इरेज नहीं कर रहा हूं मैं, इसको मैंने डॉटेड सा कर दिया, मतलब अब इसको हमने कंसीडर नहीं करना है. तो अब हमारे पास कितनी फोर्सेस बच गई? वन इज R cos theta, one is weight, another is mu r sin theta और F sin theta. और दो फोर्सेस बची, दैट इज इक्वल टू F cos theta और mu r cos theta and r sin theta. ये जो दोनों फोर्सेस है बेटे, F cos theta and r sin theta, they are towards the center of the banked road. देखो ना, बैंक ऐसे बैंक रोड, ऐसे रोड, ऐसे गाड़ी चल रही है ऐसे बैंकिंग रोड के ऊपर. तो ये जो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्सेज हैं? दो फोर्सेज हैं, F cos theta एंड R sin theta. और जो फोर्स हमेशा एक सर्कुलर टर्न के ऊपर सेंटर की ओर होती है, दैट इज कॉल्ड Centripetal force. So therefore the component F cos theta and R sin theta being toward the center of the turn of banked road, it will provide, these will provide the necessary centripetal force, and the component mg and F sin theta or mu r sin theta, that will balance the R cos theta. Okay, so therefore from the figure R cos theta is equal to, or you can say from the figure R cos theta is equal to R cos theta is equal to mg plus mu r sin theta, mg plus mu r sin theta, or mg is equal to बेटे दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस स्टूडेंट्स? Yes, sir. R cos theta as it is, mg भी as it is, mu r sin theta को तो ले जाएंगे हम माइनस mu r sin theta और R cos theta into 1 minus mu R sin theta divided by R cos theta is equal to mg. ओके बेटा जी, R से R क्या हो गया? कैंसल. सो देयरफॉर ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया बोलो शाबाश, R cos theta into 1 minus mu tangent of theta is equal to mg. This is equation number 1. Rather, this is equation number 1 and you can take it equation number 1b.
you can take 1 week. Okay. Similarly, beta ji, the forces F cos theta and R sin theta both are toward the center of the circle. So therefore, mutually they will provide the necessary centripetal force. So therefore, from the figure we have mu r cos theta plus r sin theta will provide the necessary centripetal force mv. This is the maximum speed. हम मैक्सिमम स्पीड के लिए कर रहे हैं, कितनी स्पीड से नेगोशिएट करेगा, mvx max square upon r. Okay, so therefore again from here बेटे बोलो शॉस कैसे करेंगे इसको. Now it is equal to, again you can take r cos theta common, then क्या आएगा आपके पास mu plus tangent of theta. देखो ना यहाँ से म्यू रह गया, एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया म्यू आर कॉस थीटा, और आगे क्या है आर साइन थीटा. इसमें तो आर साइन थीटा है नहीं, कॉमन लिया तो डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू mv मैक्सिमम मैक्स स्क्वायर अपॉन आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Okay, dividing equation 2 by equation 1. Dividing 2 by 1 we get, dividing 2 by v1 we get what you will get. ये आ गया बेटा हमारे पास this and this, ये आ जाएगा हमारे नीचे. यहाँ पे क्या आएगा mg नीचे आएगा, इसके rmg के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसके नीचे क्या आएगा बेटे बोलो शाबाश, r cos theta as it is into 1 minus mu tangent of theta. r cos theta से r cos theta क्या हो गया, ये स्ट्रेस m से m बेटे कैंसिल हो गया. ओके, सो देयरफॉर आपके पास आ जाएगा रिजल्ट कितना आएगा बेटा बोलो, v max square is equal to rg जो होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे जाके ना, rg इंटू म्यू प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा. देयरफॉर वी मैक्स कितना हो जाएगा बेटे, अगर मैं यहाँ पे वी मैक्स निकालूं तो यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ पे रेज टू पावर 1/2 लगा दूंगा ना. देयरफॉर वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा रेज टू पावर 1/2 और रूट. यस बेटा जी, any doubt students? No sir. बोल दिया करो बेटे, जल्दी टाइम नहीं वेस्ट किया करो. ठीक है, हाँ देखो लिसन, अब अगला आर्टिकल है राइट डाउन बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट. बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट. अच्छा देखो, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, और ये आर्टिकल ए ही है पूरा. लिसन देखो बेटा स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल एज इट इज पूरा उतारना वहीं पे. ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट एंड ये जो आर्टिकल था, ठीक है, व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, ये सेम है. अब कार जो है ना, देखो जब आप साइकिल देखा होगा अपने फिल्मों में भी, ओके, जब वो हीरो जो होता है बहुत छोटे टर्न के ऊपर आकर उसने बाइक करनी होती है टर्न, तो वो बिल्कुल बैंड हो जाता है ना. Yes sir. लेकिन कार कैसे बैंड करें, कार तो बैंड होगी नहीं, इसलिए हमने कार का जो क्या होता है रोड होता है वही बैंक किया होता है ना. जितना साइकिलिस्ट बैंड होता है कार के लिए हमने रोड उतना ऊपर उठाया होता है. अंडरस्टैंड? Yes sir. बाकी एज इट इज साइकिल बड़ा जो होता है ना, जैसे फिल्मों में तो दिखा देते हैं, ले जाते हैं 2 टायरों के ऊपर लेफ्ट में है ना, फिल्मों में तो बहुत कुछ होता है. ठीक है, यहाँ नहीं होगा.
तो जो बैंकिंग ऑफ ट्रैक होगा, ठीक है, वो कार के लिए, और साइकिल वाला जो है वो बैंक वाले रोड पे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जब देखो प्लेन सर्कस के बीच में घूमता है, या हम भी कई बार देखा होगा आपने के आपका फ्रेंड आपसे आगे आगे चला होता है, वो थोड़ा बहुत बेंड हो जाता हो, स्कूटी को आगे पीछे बेंड कर लेता हो, ठीक है, हाँ, तो उसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। लेकिन बेंडिंग ऑफ अ कार वाले को नहीं बोलना अपने बेंडिंग ऑफ ए कार, इन वी कांट बेंड अ कार, oh therefore the roads are banked, okay, or the outer side of the road is raised by proper this angle, ठीक है, from the inner side, and this banking is done in hilly areas because the radius of the turn is small. Small is the radius of the turn, more than the angle of banking. तो आपको साइकिलिस्ट वाला भी आ सकता है, तो यही करना आपने, ओके। आप क्वेश्चन लिख लो बेटे, ठीक है। बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट एंड कार ऑन ए बैक्ड रोड? बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट एंड बैंकिंग ऑफ अ yes students, done बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I am sending you the link of attendance form. So within 30 सेकेंड आप इसको बेटे चैट बॉक्स में, ठीक है, यस, चैट बॉक्स में बेटे मैं इसको भेज रहा हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स का मैं उसको ऊपर नहीं हो रहा ना वो, हाँ यस, आ गया। Yes students, बेटे I have shared it. Yes, वो everyone नहीं है, देख ही रहा होगा। हाँ यस बेटे, अब आया। यस, 30 सेकंड में करो बेटा, फिर मैं आगे चलते हैं। यस बेटा जी, नेक्स्ट आर्टिकल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, देखना बेटा जी, इधर ये मैंने दो सर्कल बनाए, दिस इज सर्कल नंबर 1 and here is circle number 2, which one is vertical? 1. yes, ऐसे ऐसे है ना, अगर ऐसे ऐसे कोई चीज चल रही है इसको बोलेंगे वर्टिकल, और जैसे जलेबी बनाते हैं दैट इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल, ओके। हाँ यस, मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल। सो लेट बेटे, here is a circle of radius r, and this is the lowest point, here is the ground, it is just about to touch the ground, okay,
and a body of mass m is tied with the string of radius of length equal to the radius of r. Now weight of the body is in downward direction, that is equal to weight. Let the body is revolving, okay, in anti-clockwise direction. So therefore the velocity is equal to what? That is equal to, let v1. Let the velocity at the lowest point is what? v1. And when the body and tension in the string, that will be in our direction, that this is t1. Tension जो string में होगी, that is in our direction, that is t1. और weight of the body will be in vertical downward direction. और जो linear speed होगी, that is always tangential. Tangential का मतलब that is always parallel to the tangent to the circle. Now when the body will reach here at the uppermost point, then the tangential speed, linear speed of the body is let v2. Weight of the body will be in downward direction always. O is the center. Weight of the body is always in downward direction. And tension is also in the downward direction T2. Okay? ऊपर होती नहीं टेंशन वैसे. जब आप देखो बकेट ना, जब आप देखो ठीक है, मॉर्निंग में वॉशरूम में जाएंगे ठीक है, तो आपने क्या करना, बकेट को आधा फिल करना और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाना. ठीक है, निशांत तू रहने देना बेटा, कहीं बाजू ना तोड़ लेना. ओके, हाँ ऐसे ऐसे घुमाना. ठीक है, तो आप देखेंगे टेंशन जो होगी वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा होगी. खींच जो आपकी बाजू में पड़ेगी वो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे होगी. लेकिन जैसे ही आपकी बाजू टॉप पे जाएगी वहां पे T2 खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म होगी. ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम द फिगर, यस बेटा, T1 minus mg, बोलो शाबाश, राइट डाउन फ्रॉम द फिगर. देखो इधर T1 जो है वो दैट इज टुवर्ड द सेंटर, mg जो है दैट इज दिस रेडियली आउटवर्ड्स. लेकिन फिर भी ये बॉडी घूम रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? स्टूडेंट्स देखो बेटा, टेंशन जो है T1 टुवर्ड द सेंटर, इट विल प्रोवाइड नेसेसरी T1. और जो वेट है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन फिर भी बॉडी जो सर्कल में घूम रही है. इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है जिसको, जो इसको यहां से यहां से यहां से यहां से यहां नेसेसरी फोर्स. सो देयरफॉर दैट नेसेसरी फोर्स इज व्हाट? एट पॉइंट ए कर लो बेटा, हियर इज पॉइंट ए एंड हियर इज पॉइंट बी. एट पॉइंट ए T1 माइनस mg इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर अपॉन r. Tension T1 minus weight is equal to that will provide the necessary centripetal force at point A. और A point के ऊपर velocity कितनी है? v1. Okay. Similarly at point 2, के ऊपर देखो both T2 and weight they are toward the center. So mutually both. This is equation number 1. So therefore at point B, T2 plus weight is equal to what? mv2 square upon r is equal to, sorry, okay, but T2 is equal to 0. इसके बाद देखना आपने at the highest point tension is always 0. okay, at the highest point T2 is equal to 0. therefore we have, मैंने ये बना दिया. okay, we have 0 plus mg is equal to mv2 square upon r. और बेटे m से m क्या जाएगा? कैंसर. so therefore आपके पास आएगा v square is equal to rg और v is equal to rg root. this is equation number 2. this is equation number 2. this is equation number 2. okay, now बेटा जी इसके बाद लिखेंगे राइट डाउन. यस बेटे, यहां पर लिखना एट पॉइंट ए द बॉडी हैज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी. ओके, और एट पॉइंट बी पे भी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को मिला के बोल देते हैं हम क्या? मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए is equal to mechanical energy at point B. So therefore according to the law of conservation of energy, mechanical energy at point A is equal to mechanical energy at point B.
और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ओके, सो देखो बेटे मैं पहले कह दिया आपको, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड से इसकी हाइट 0 है, तो जब इसकी हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। H होता है, m तो है, g भी है, लेकिन h 0 है, so you can write that is equal to mg into 0 plus काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv1 square is equal to potential energy at point B mg into 2r। 2r समझा गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. mg into 2r, क्योंकि देखो हाफ रेडियस r है, ऊपर भी r है, तो इसकी हाइट कितनी होगी 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी 1/2 m v2 स्क्वायर। ओके, नाउ ये तो 0 होगी टर्म। ओके, हाँ, नाउ मल्टीप्लाई अगर हम करें इस इक्वेशन को 2 से तो कितना आ गया 2 2 2 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 1/2 2/2 कैंसिल हो गया, 2/2 कैंसिल हो गया। ओके, अब तीनों टर्म में m भी है, m भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया बेटे v1 स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू 4gr प्लस v2 स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम देखें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, so therefore v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस gr, हैंस बेटे यहां पे रिफ्लेक्शन तो नहीं है? Yes, sir. है। चलो थोड़ा मैं लैपटॉप को इधर घुमा देता हूं। यस, सो देयरफॉर हमारे पास आ गया बेटे कितना आ गया v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, सो देयरफॉर v1 इज इक्वल टू रूट 5gr। ओके, सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल को और ऑब्जेक्ट को अगर आपने एक वर्टिकल सर्कल में नेगोशिएट करना है, रोटेट करना है, तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए √5gr। कितनी होनी होगी बेटे वेलोसिटी इसकी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर √5gr। ओके, और टेंशन कितनी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द टेंशन T1, T2 तो पहले 0 है। In order to find the tension T1, put the value of V1 in equation number 1। हरिए जल्दी करो बेटा जी, put the value of V1 in equation number so what you will get, we will get T1 is equal to mv1 square upon r plus mg। ओके, करो जल्दी जल्दी, शाबाश बेटा जी। v1 स्क्वायर की जगह रख लो 5gr। यस, कितना आ गया बेटे 5m plus mg। 5mg The 4mg 5mg plus mg equal to T1 is equal to 6mg। T1 is equal to 6mg, so therefore जो टेंशन है वो कितनी होनी चाहिए that should be equal to 6mg। मीन जो स्ट्रिंग है आपकी, लिसन, अगर आपने कोई स्टोन वगैरह बांध रखा है या ब्रिक बांध रखी है, तो इसमें जो टेंशन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम 6mg वेट उठाने के लिए होनी चाहिए ना। बॉडी से जितना बॉडी का वेट होगा उससे 6 गुना ज्यादा उसको स्ट्रेंथ चाहिए। अगर वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगी तो वो टूट जाएगी ना। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो आपको बेटे क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। ओके, प्रूव दैट
in order to negotiate a vertical circle for a body of mass m, okay, the minimum velocity required at the lowest point should be equal to under root 5 gr, and the tension in the string or the strength of the tension of the string should be 6 times of the weight of the body. Okay,